Okay, yesterday we have started some definitions. Okay, definitions of like fraction, unlike fraction, proper fraction, improper fraction, mixed fraction, vulgar fraction. We have seen the definitions. I have sent you the image also. Have you copied it in your CW? Only Rhythm has copied it. What about others? See, I told you yesterday only you will have to write it in the CW. We have seen the definitions of like fractions, unlike fractions, its example, decimal fraction क्या होता है, vulgar fraction क्या होता है हमने कल देखा है, उसके बाद proper fraction, improper fraction, and at the last we have also seen the mixed fraction. Okay, तो mixed fraction क्या होता है? It is the combination of a whole number and a proper fraction. Okay. So कैन यू टेल मी द कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है 2 1/3. ओके, 2 1/3 दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसका कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग? यस, आरुष, आरुष बांगड़. Sir, we will multiply 2 into 3 and the denominator will be 3 only. Then 2 into 3 is 6. Then we will add 1. So 7/3. 7/3 करेक्ट. ओके, ये दोनों जो नंबर्स होते हैं इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इनके साथ एडिशन होता है. ओके, तो 2 into 3 is 6, 6 + 1 is 7. वो 7 न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर एज इट इज हम लोग लिखते हैं. ओके, डिनोमिनेटर हम लोग एज इट इज लिखते हैं for the conversion of mixed fraction into, now which type of fraction it is? 7/3. Sir, improper fraction. What is the reason? Sir, because denominator is smaller than numerator. Numerator is greater and denominator is smaller, that's why it is a improper fraction. तो mixed fraction का conversion हमेशा improper fraction में ही होता है और Yes, sir. improper fraction को हम लोग mixed fraction के form में लिख सकते हैं. Okay, we'll take few more example, then it will be more clear. Okay, now tell me 7 3/8. Who will convert this? Mute yourself, Arush. Ajay God. Okay. Ajay God. Yes, sir. So first we will multiply 8 by 7. Okay. 52. What? 52, that will come. 8 sevens are. 8 sevens is 52, beta. Then it we so? will add 3 to it. Is 8 sevens are 52? Is it correct? 54. 54. Then what is 9 6? 1 second, sir. 54. 56. 7 8 या फिर 8 7 is 56. 56 plus 3, 59. 59/8 is the answer. Okay. Sir, we cannot reduce it. Now already means we have converted it from mixed fraction to improper fraction. Yes. If you again want to convert it into mixed fraction, what we will do? Divide it by 8. Okay, denominator will remain same.
डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पे हम लोग साइड में डिवीजन करते हैं, चलो 59 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 7 इज 56, रिमाइंडर इज व्हाट 3। तो ये जो रिमाइंडर है ना 3, इट विल कम हियर इन द न्यूमरेटर एंड दिस quotient will come here 7, again it became 7 3 by 8. Okay, is it clear to everyone? Please give the response in the chat box. Okay, so shall we move to the next topic? Okay, next topic is equivalent fraction. Okay, equivalent fraction समझते हैं अभी हम लोग. Equivalent fractions are fractions having same value. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग? जो फ्रैक्शंस का वैल्यू सेम होता है. अभी यहाँ पे आप पहला फिगर देखो. ओके, सी केयरफुली. नाउ 1/2. ओके, उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/4, उसका ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/8. यानी ये तीनों क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है. अभी आपको फिगर पे से भी समझ में आ रहा होगा 1/2 इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग दिस हाफ सर्कल. Okay, 2/4 is also representing this half circle, and 4/8 is also representing this half circle. So that's why these are equivalent fractions. Okay, अगर आप ये 2/4 को भी सिंप्लीफाई करते हो तो ये फिर से 1/2 ही आता है. 4/8 को भी आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये फिर से 1/2 ही आता है. ओके, इज इट क्लियर टू यू? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आप सेकेंड फिगर देखो, पिज्जा पिज्जा वाला फिगर. It will be more clear now. Okay, again 1/2, 4/8. Okay, so this is half pizza. 1/2 means half pizza, and here also this 4/8 means what? This is also a half pizza. So that's why these are equivalent fractions. Okay, Soham, what happened? Soham Rathod. Yes, Soham. Bolo Soham, what's your problem? Soham, can you hear me? Soham Rathod. Okay, fine. Leave it. Next, here also these are equivalent fractions. 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 and 5/10. Okay, आप देख सकते हो 1/2 यानी it is representing half circle. Again 2/4, it is also representing half circle. Half circle is colored. Okay, for 2/4 also. For 3/6 also this half circle is colored. For 4/8 also this half circle is colored. And for 5/10 also this half circle is colored. Okay, तो सब अगर आप कन्वर्ट करोगे ये 2/4 को तो ये भी आता है 1/2. 3/6 को भी आप कन्वर्ट करोगे तो ये भी आएगा 1/2. 4/8 को भी आप कन्वर्ट करोगे दिस ऑल्सो विल कम 1/2. 5/10 को भी आप कन्वर्ट करोगे दिस ऑल्सो विल कम 1/2. सो दैट्स व्हाई दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ आई डोंट थिंक सो there is any confusion remaining regarding equivalent fractions. Is it clear to everyone why they are equivalent fractions? Okay, next. Okay, अभी बहुत important topic है conversion of fractions. Okay, अभी like denominators should be same and denominators should be different. दो केसेस है हमारे पास. अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. ओके, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है. यहाँ पे ऊपर कुछ भी नंबर रहने दो. यहाँ पे सपोज 1 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है. ओके,
व्हाट इज द केस दैट डिनोमिनेटर इज सेम, बीच में एडिशन का साइन है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, इन दैट केस ओनली। ओके, और न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1+4, सो अल्टीमेटली व्हाट इट विल कम, 5/3। ओके, सो द एडिशन ऑफ दिस टू फ्रैक्शंस विल कम व्हाट, 5/3। Okay, when the denominator is same, what we do, we perform the operation which is given for the numerator, जो भी operation यहाँ पे बीच में given होगा, addition, subtraction. Okay, and this is only done for addition and subtraction only. हाँ, अगर यहाँ पे बीच में multiplication का sign होता, okay, अगर यहाँ पे 1/3 multiplied by 4/3 ऐसा अगर होता तो हम लोग क्या करते फिर, बीच में अभी multiplication का sign है, क्या करेंगे हम लोग? Yes, Shreya Gilda, can you tell me? Shreya. Sir, we will do cross multiplication. नो बेटा, यही तो गलत मिसकंसेप्शन है आपके पास। मुझे पता था आप ये आंसर दोगे, इस वजह से मैंने एक क्वेश्चन पूछा। जब बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो हम लोग न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 4 अपॉन 3 × 3। when there is a multiplication sign in between, we do like this. Okay, so this will come 4/9. no cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन का साइन जब होता है बीच में तभी करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन है और बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड आल्सो दे डू द मिस्टेक, सेम मिस्टेक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now we will see our actual topic, what they have said. In order to convert unlike fractions into like fractions, अब मुझे बोलो like fractions कौन से है, जिनका डिनोमिनेटर सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस कौन से हैं, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ओके, तो हमको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को हमको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है पहले, फॉर सॉल्विंग द फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट होने के बाद, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया 1/3 प्लस 4/3, ये दोनों क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, सो वी कैन टेक द कॉमन डिनोमिनेटर, एंड 1+4 दैट इज 5/3 विल बी द आंसर। तो हमको लाइक फ्रैक्शन चाहिए, हर बार हमको क्या चाहिए, लाइक फ्रैक्शन चाहिए, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। जो भी ऑपरेशन हमको यहाँ पे गिवन होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा, डोंट वरी। सो फर्स्ट व्हाट वी डू, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो वो प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। वो प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम? आदित्य खट्टी, आदित्य खट्टी, डू यू नो एलसीएम? आदित्य खट्टी। Okay, Vraj, do you know LCM? Lowest common factor. It is not lowest, but it is least common factor. Yes, sir. Yes, sir. Money. Yes, sir. What is the question? Manit, your Sir? voice is Yes, not sir. What is? coming. You unmuted me. Okay, voice is not coming, beta. There is a network issue. Okay, so LCM means least common multiple, not factor. Okay, least common multiple. And what do you mean by HCF? Yes, Girija Dharmadikari. What do you mean by HCF? HCF is highest common factor. Correct. HCF is highest common factor. Okay, so LCM and HCF, these are very important. Okay, least common multiple and highest common factor. Okay, तो एक में फैक्टर होता है, एक में मल्टीपल होता है। नाउ सी हियर,
एलसीएम, अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना है। यहाँ पे पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 6, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 9, तीसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 12। तो हमको एलसीएम लेना है ये तीनों डिनोमिनेटर्स का। सो एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12। ओके, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 12। अभी देखो मैं आपको एक मेथड बताने जा रहा हूं टू फाइंड द एलसीएम। इमीडिएटली आप एलसीएम निकाल सकते हो किसी भी वैल्यू का। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 6, 9 और 12 ये तीन नंबर्स है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा वाला नंबर 6, 9 और 12 में 12. 12 सबसे बड़ा नंबर है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को हम लोग साइड में लिख देंगे। अब मुझे बोलो 6 इज डिविजिबल बाय 12, यस और नो? 12 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं तो वो होता है, बट क्या हम लोग 12 को 9 से डिवाइड करते हैं तो होता है क्या डिवाइड? नहीं होता है, नहीं होता है। ओके, तो ये जो 12 है ना उसका डबल करो, फिर से सेम प्रोसेस करो। 24 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, फिर 24 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा। ओके, फिर बाद में 3 गुना करो 36, पहले 12 था उसका डबल 24 हुआ, और 3 गुना करने के बाद 36 हो गया। अभी 36 को 6 से डिवाइड करके देखो होता है, 36 को 9 से डिवाइड करके देखो होता है। ओके, और 36 को 12 से डिवाइड करके देखो वो भी होता है। तो यहाँ पे तीनों भी पॉसिबल है, दैट मीन्स द एलसीएम इज 36। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये प्रैक्टिस से आएगा, आपको इमीडिएटली नहीं जमेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। ओके, सो हियर द एलसीएम इज 36। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट दिस अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो पहला फ्रैक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 7/6, दूसरा फ्रैक्शन है मेरा 5/9, और तीसरा फ्रैक्शन है मेरा 5/12। ओके, तो अभी मैंने एलसीएम क्या निकाला है, व्हाट आई गॉट द एलसीएम 36। तो मुझे हर बार डिनोमिनेटर में अभी 36 लाना है, तो मुझे ये 6 को 36 बनाना है। तो मैं कैसे बना सकता हूं, हाउ आई कैन मेक दिस 6 एज 36? इफ आई मल्टीप्लाई दिस 6/6 देन इट विल बिकम 36। अगर मैं डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी 6 से ही करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आ जाएगा 36 अपॉन ऊपर आ जाएगा 42। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है 5/9, 9 को मुझे 36 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। ओके, डिनोमिनेटर को 4 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 4 से ही करना पड़ेगा। अभी देखो फिर से डिनोमिनेटर 36 आ गया, न्यूमरेटर आ गया 20। ओके, अब ये 12 को 36 बनाना है तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आ गया 36, ऊपर आ गया 15। अभी देखो आप तीनों भी लाइक फ्रैक्शंस बन गए क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया अभी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इमीडिएटली आपको नहीं समझेगा, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। Again and again you will have to repeat the things. Okay, so you check the video, today's video, when I will post it, then it will be more clear to you. Immediately नहीं समझता है वो। Okay, I told you the shortcut method also to find the LCM, and how we balance the equation, and what is the use of that LCM. We bring that LCM in the denominator place. अब देखो डिनोमिनेटर में सारे जगह पे 36 36 36 है, इसलिए हम लोग वो LCM निकालते हैं। Okay, so in this way we convert unlike fractions into like fractions. Okay, Ayush, ओके अभी हमारा वही क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शन। नाउ इट विल बी मोर क्लियर। जिन लोगों को नहीं समझा है अभी ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया है मैंने, एक्सरसाइज 5.2। ओके, नाउ सी हियर वी आर हैविंग थ्री फ्रैक्शंस, 3/4, 3/10 and 1/20।
तो अभी मुझे बोलो तीनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज द डिनोमिनेटर? For all the three denominators, we will take the LCM. LCM of 4, 10, 20. What will be the LCM? Bolo. Yes, who will try this? Parth Agrawal. Parth Agrawal. Parth Agrawal, can you hear me? Okay. Tanishka Jain. Tanishka Jain. Tanishka Jain. Okay, Vraj. Vraj Sodani. Sir, 20 is divisible by 4, but 10 is not, so we will double the 10. 10 multiplied by 2 is बेटा equal to बेटा 20. बेटा बेटा वेट 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 वेट, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 4, 10 और 20। 20। ओके, 20 को आप साइड में लिख दोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो होता है 20, डिवाइडेड बाय 10 भी करोगे तो होता है, दैट मीन्स द एलसीएम इज 20 ओनली। समझ में आया क्या आपको? सारे वैल्यूज डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 10 भी डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है 20 से, दैट्स व्हाई द एलसीएम इज 20। इज इट क्लियर टू यू व्रज? Yes, sir. सब डिविजिबल होना चाहिए, बस वही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करना है। तो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल, 10 इज ऑल्सो डिविजिबल एंड 20 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20, सो दैट्स व्हाई द एलसीएम इज 20। तो यहाँ पे 3/4 इज माय फर्स्ट फ्रैक्शन, हाँ, 3/10 is my second fraction and 1/20 is my third fraction। तो अभी एलसीएम मेरा क्या आया है? 20। तो मुझे हर बार डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 20 चाहिए। तो मुझे ये 4 को 20 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा व्रज? 4 multiplied by 5 is equal to करेक्ट 20. करेक्ट, 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो अगर डिनोमिनेटर को 5 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से करना पड़ता है। अब ये मुझे 10 को 20 बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा मैं व्रज? 10 multiplied by 2 is equal to 20. अगर डिनोमिनेटर को 2 से करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही करना पड़ेगा। अभी ये 20 को मुझे 20 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो। डिनोमिनेटर को 1 से किया है तो न्यूमरेटर को भी 1 से कर दो। ओके, सो व्हाट इट विल कम? 15/20, 6/20 एंड 1/20 हो गया। We have converted these unlike fractions into like fractions. Yes or no? Yes, sir. Okay. Mute yourself. Yes, I want the answers from others now. Vaishnavi Jaju, next answer. You will be giving me the next answer. Vaishnavi. Yes, sir. Yes, sir. Convert the 3/8, 5/6, 7/36. Sir, first we will take the LCM of 8, 6 and 36. Okay, 8, 6 and 36. What is the 36. what is the LCM? 36 is greater, so 6 is divisible by 36. But 8 is not divisible. Yes, sir. So we will 36 plus 36. 72. 72. 72 is 72 divided by 8 is 8 possible. is yes, sir, and 6 is also possible. And So 36 also. 72. Yes. So 72 is the LCM. Correct. So एक टेबल में 72, 8 9s are 72. Correct. So 8 multiplied by 9. So 3 is also into 9. So and 6 11s are 12s are and 5 12s are. So 36 2s are 2s are. okay, correct. And 7 2s are. So 3/9. 27 by 72. 60 by 72 and 14 by 72.
So these all are like fractions. Yes, sir. Okay, these all are like fractions. We have converted all the unlike fractions into like fractions. This is how we do the conversion. Okay, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था अभी ये दो एग्जाम्पल ठीक से ध्यान से देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा. Okay. Please give the response in the chat box whether it is clear to you or not. Okay, next one. Harshita Dodia will try the next question. Harshita, can you hear me? Harshita. Hello. हाँ बोलो. 2 by 15, 1 by 45, 3 by 25. So we have to take LCM of 15, 45 and 25. Okay, so what will be the And the LCM? greater number is 45. Hmm. 45 divided by 15. It is possible, but 45 divided by 25 is not possible. Yes or no? Yes. So 45 का 45 plus का- 45. 90. 45 plus 45 90. Yes. But 90 से हम लोग 25 को अगर डिवाइड करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल. तो 3 गुना कर दो. 90 plus 45. 135. 135 is divisible by 25. No, it is not divisible. फिर 4 गुना कर दो. 140. Again 25 is not divisible. फिर 5 गुना कर दो. What it comes? 165. 175 it will come or not? 165, correct. 165, not 175. Again it is not divisible. फिर और 25 और 45 ऐड कर दो उसमें कितना आता है? 185. 140 plus 45 it will come 185. Okay. Yes. Again उसमें 45 ऐड कर दो कितना आता है? ये 140 कैसे आ गया? ये 140 नहीं आएगा. 135 में 45 जोड़ दो कितना आता है? See, 135 plus 45. 180. ओके, ईयर 180 विल कम. उसमें 45 जोड़ दो ये 225 आता है. अब 225 से 15 भी डिविजिबल है, 45 भी और 25 भी. तो व्हाट इज द एलसीएम? LCM is 225. 225. So 2 by 15, 1 by 45 और 3 by 25. ओके, तो अभी डिनोमिनेटर में 225 आना चाहिए. बोलो 15 को किससे मल्टीप्लाई करो to get 225? 15 tens is how much? 150. Okay, 15 fives is how much? 75. दोनों को जोड़ देंगे तो 225 बन रहा है. यानी 15 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 15 से. 75. 15 Okay. से ये 10 जा और ये 5 जा, दोनों को जोड़ दिया तो 10 plus 5 15. So 15 को 15 से 2 मल्टीप्लाई करो. multiply by 15. ओके, 45 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 जा, 2 जा, 3 जा, 4 जा, 5 जा. 5 से मल्टीप्लाई करो. 5. 1 multiply 25 by को 5. 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे. डिनोमिनेटर को 9 से तो न्यूमरेटर को भी 9 से. सो दिस विल बिकम 30 upon 225. This will become 5 5 upon 225. and 27 upon 225. that's it. These all are the like fractions. Okay. We have converted all the unlike fractions into like fraction. Yes, next one, Lisa Sukhani.
Yes, sir. बोलो. Sir, the greatest number is 9, but it doesn't comes in 2 and 7 tables. So we will take 9 table, Double it. 18. Okay, again it is not divisible. We will take 3 times 27. Again it is not divisible. We will take 4 times 36. Okay. Again it is not divisible. Okay, so we will take 45. Again it is not divisible. What it will come? 54. Again it is not divisible. 63. Again, is it divisible? What happened? Lisa, you have unmute. Okay, Namrata Goswami. Continue the question, Namrata. Sir, I am Shlok Joshi. I'm doing from today. I'm doing from my mother's phone. Now that's why my name is like that. Okay, fine, no problem. बोलो Today क्या? there was not Wi-Fi, so I joined with mama's phone. Okay. So, sir, first to 126. 126. LCM is 126. Yes, sir. How you got it directly? I have solved it directly. Wait, I'll show you. Prime factorization Like method. this. You have to do it like that. Okay, that is prime factorization method. Okay, the LCM is correct. That is 120. 126. I found it easy, so I do like that. Okay, no issue. And now it is 63. We have to first in 63 in first 2 into 36. We have to 2 bring into 126 in the 63. in the denominator. So 63. That only 63 only. Okay. Into 63. And next one 7 7 7 1 7 and wait, sir, I'm solving. 18. 18. Yeah, 18. 7 into 18, 3 into 18. Yeah, next it is 7 by 9. So it is 7 by 9. So 8 za. 7 by 9, 8 za. 8 za or 14 za? 8 za. 8 za. 7 8 za. 9 8 za, sorry. 9 8 za? What you're telling? And next one, sir, that 7 by 9. 9 को मुझे 126 बनाना है तो मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 14. I thought something else. Okay. So 63 divided by 126. Here it will come 54 divided by 126. And 14 sevens is how much? 14 sevens are 14 into 7. 7 7 14 and 14 14 20 14 14 14 56 14 plus 7 14 6 14 6 84 96 98 98 98. Okay. It's 98. Okay. 98 by So these all are like fractions. Okay. Mute yourself. Yes, sir. Is it clear to everyone now how we convert unlike fractions into like fractions? आप LCM फाइंड करने के लिए कोई और मेथड भी यूज कर सकते हो, लाइक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है दूसरा वाला. ओके, सो आपको 2 7 और 9 का अगर आपको LCM फाइंड करना है तो आप वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी उसको फाइंड कर सकते हो. ओके, 2 7 एंड 9. जिन लोगों को ये डायरेक्ट मेथड अगर डिफिकल्ट लग रहा है दे कैन डू इट लाइक दिस. नाउ अभी 2 7 9 यहाँ पे पहले हम लोग 2 से ही शुरुआत करेंगे. ओके, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 1. दिस 7 will come as it is because it is not divisible by 2. This 9 will come as it is. It is also not divisible by 2. Next, by what we will divide? We will divide by 7.
Okay, this one will come as it is. 7 ones are 7, and no. Next we will divide by 3, not 7. Okay, because this 9 is divisible by 3. Okay, so ये 7 as it is आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3. उसके बाद 3 1 7, 3 1 is 3, and उसके बाद 7 1 1 1. Okay, just do the product of this. 2 3s is 6, 6 3s is 18, 18 7s is 126. You will get the LCM from here also. If you want this method, you can use this method also, no issue. This is called prime factorization method. Okay, जिन लोगों को ये मेथड कन्वीनियंट लगता है, they can use this method for finding the LCM. Okay, I think so the time is up. Last 1 minute is remaining. We will continue in the next session on Monday.